Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the role, function and powers of Chief Election Commissioner and the members of Election Commissioner under the 1973 Constitution. इसके लिए first of all we have to have a better understanding के how the institution of Election Commissioner has existed in Pakistan and how it has been changed. इन दो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए the very first thing that we are going to talk about is that के from 1947 to 1973 the institution of Election Commission or Election Commissioner used to exist, but most of the people who used to be appointed as the head of this institution, they were usually taken from the bureaucracy, and President of Pakistan was having the authority to take people, blue-eyed people or the people who were having the expertise to talk about or take control of this institution. They used to be appointed over as the head of the Chief Election Commission. Later on, in 1973, when we got our first unanimously approved constitution, in that in this constitution from 1973 to almost 2009 or 10, before the 18th amendment, the structure was almost changed, and it was decided that only a person from the apex court, means from the Supreme Court, would be appointed as the Chief Election Commissioner. And this change happened when we got our first unanimously approved constitution in 1973, and the practice of taking some people from the bureaucracy was left behind, and a new practice of getting people from the apex court was adopted, and it was maintained and it was ensured that because the people from the legal fraternity, they are having the better understanding of the legal affairs, so the people who are well versed in legal affairs, only those people could be appointed as the Chief Election Commissioner or the members of the institution of Election Commission. Anyway, after 18th amendment, radical changes happened, with reference to the appointment of the Chief Election Commissioner, with reference to the role and function of the institution of Election Commissioner. And then after the 18th amendment, as you people have already discussed 18th amendment when you were my student and during the course, during very first semester in Pakistan study course, and we find in 18th amendment that there were some anomalies which were not being resolved by the executive and the legislature of Pakistan. So in order to remove those anomalies with reference to the appointment and the power functions of the Chief Election Commissioner and the institution as a whole, then the 20th amendment was brought. And even the legislature and the people at large in Pakistan, they were not satisfied whatever the suggestions were being recommended in 20th amendment. And then 22 amendment, that is known as the most important and very effective amendment ever made with reference to the power, function and role of Chief Election Commissioner and the Election Commissioner as an institution as a whole, were being incorporated in 1973 Constitution. So when we talk about the so our today's lecture basically is revolving around the sense which was being created with reference to the institution of Election Commissioner in 18th amendment, and then the changes were being brought by the legislature of Pakistan in 20th amendment and 22nd amendment. All these things collectively as a wholesome we are going to talk about in today's lecture.
So under 1973 Constitution, Part 8 of 1973 Constitution directly deals with the processes of elections in Pakistan. And Part 8 is composed of two chapters, Chapter number 1 and Chapter number 2. Chapter number 1 is basically related to the appointment method, power of Chief Election Commissioner and the members of Chief Election Commission. And the Chapter 2 is basically related to the rules and regulations of conducting elections in Pakistan. So let's talk about the Chapter 1 of Part 8 of 1973 Constitution. And Chapter 1 starts from Article 213, and it is further divided into different classes and subclasses. So in today's lecture we will be trying to discuss the most important and significant changes which are being made as the part of 1973 Constitution under 18th, 20th and 22nd Amendment. So starting from Article 213 का जो क्लास 1 है, that is related to the appointment of Chief Election Commissioner. अच्छा, remember one thing, the designation of Chief Election Commissioner in Constitution is written as Commissioner. So when we would be learning in 1973 Constitution with reference to the designation of Commissioner, we people are supposed to talk about in terms of the Chief Election Commissioner. So Constitution talk about the Commissioner, but this Commissioner is usually referred in our today's lingua franca and political vocabulary as Chief Election Commissioner. So these two terminologies are used interchangeably. ये interchangeably use होती हैं. So the Chief Election Commissioner or the Commissioner under 1973 Constitution is appointed by the President of Pakistan. President of Pakistan under 1973 Constitution under Article 230 Clause 1 के तहत President is having the authority to appoint the Chief Election Commissioner. जैसे मैंने बताया, the slot of Commissioner and the Chief Election Commissioner are used interchangeably. These two terminology basically refer to the same designation, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का. आर्टिकल 230 का क्लास 2 जो है उसका बेसिकली बताया जाता है दैट क्लास 2 इज बेसिकली डीलिंग हु कुड बी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान. हु कुड बी दी, तो इसके अंदर बताया गया है ओनली 2 और 3 काइंड ऑफ पीपल कुड बी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान. पहला है that is related to the judge of Supreme Court, that is related to the judge of Supreme Court or a judge of High Court who is fully qualified to become the judge of Supreme Court. ये बातें याद रखिएगा, इसको फर्दर जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जो सब क्लास 2 है वो बेसिकली रेफर कर रहा है अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर. जैसे मैंने आप लोगों को बताया earlier before the 1973 Constitution, the head of the election commission used to be taken from the bureaucracy, and then from 1973 to 2010 almost, usually the head of the election commissioner were taken from the judiciary, apex court, means the Supreme Court. And then in 2010 in 18th Amendment and then 20th Amendment and 23rd Amendment, 22nd Amendment, some changes were being brought. और ये जो बात कर रहा हूँ कि इसको फर्दर क्वालिफाई किया गया है, बेसिकली दिस क्लास इज रेफरिंग टू द अमेंडमेंट 22, जिसके अंदर ये बताया गया है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द कमिश्नर. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन रेफरिंग टू द कमिश्नर, ये जो कमिश्नर इज बेसिकली रेफरिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ हाई कोर्ट हु फुली क्वालिफाइज टू बिकम द जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, ये 2 पर्सन यानी जुडिशरी से हो गए. Then the second provision is related to a senior civil servant, means a person could be taken as the head of the election commissioner as an institution, could be taken from the bureaucracy as well. And then the technocrat भी लिया जा सकता है, यानी कि नाउ कौन हो सकता, who could be the chief election commissioner of Pakistan? A person from the apex court or a judge from the high court who fully qualifies to become the judge of supreme court. दो बातें. A person belonging from the civil services, तीसरी बात, और a technocrat. अब technocrat की definition भी under sub clauses of the same article is being given. वो क्या कह रही है कि वो बेसिकली रेफर करता है टेक्नोक्रेट कौन है, ये बताना बहुत ज़रूरी है. टेक्नोक्रेट कौन है? अ टेक्नोक्रेट अ पर्सन हु इज हैविंग द डिग्री ऑफ एटलीस्ट 16 years ऑफ एजुकेशन, यानी जो मास्टर है, एंड हिज डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, एंड दैट पर्सन इज हैविंग द experience of almost 20 years in his respective area. That person is being referred as the technocrat. ये बात याद रखिएगा. So who could be the chief election commissioner? A judge from the Supreme Court, a senior judge from the High Court fully qualifies to become the judge of Supreme Court. These two persons could be appointed as the chief election commissioner, or a civil servant. इस civil servant को भी बताया गया है. This civil servant could be from the federal government or the provincial government, and he is being retired from the scale of 22 or above. उसको civil servant कहा गया. And the technocrat, a person having this 16 years of education and his degree being verified from the Higher Education Commission, and having at least the 20 years of experience of his respective area, and having the record of achievements in reputation of national and international. ये चीज़ें, these three persons could be the chief election commissioner. And the cut off age क्या है इसके? ऐसा नहीं है कि person having the age of a person fully qualifies these 3 or 4 preconditions, but having the age of more than 70 years, that person could not be appointed as chief election commissioner. उसके लिए क्या है? A person having no more the age of 68 years, यानी 68 years तक का जो बंदा है वो एंड फुली क्वालिफाइज दिस, ये जो प्री कंडीशन में से कोई भी एक अगर फुलफिल करता है, दैट पर्सन कुड बी अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमीशन. बच्चों ये मेरी बात समझ आई है? मैंने आप लोगों को क्या बताया है इसके अंदर, अगर मैं आप लोगों की ये बात ले पाऊँ, बात के आर्टिकल 230 का क्लास 1, क्लास 2, 2A, 2B बेसिकली डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन पाकिस्तान. And the 1973 Constitution suggests that a Prime Minister, with the consultation of opposition leader, would be sending the 3 names to the Parliamentary Committee. If there is a consensus, then only 3 names. Otherwise, opposition leaders separately 3 names, and the Prime Minister separately 3 names. 6 names would be suggested by the government and opposition to the Parliamentary Committee. And the Parliamentary Committee would be composed of 12 members. 12 members के अंदर होगी, और उसके अंदर बताया गया था कि 6 members would be taken from the opposition and the 6 members would be taken from the government, and 1/3 of the 12 members ये जो हैं would be taken from the Senate. और meanwhile अगर कोई national emergency हो गई है and the parliament is being dissolved, ये मियाद पूरी हो गई है, and the seat of the chief election commissioner is vacant because of some death or resignation or some other reasons, then ये जो parliamentary committee would be composed of the members of the Senate, और composition वही रखी जाएगी, 6 members from the trial benches and 6 members from the opposition benches. And then after consulting, अगर इसके consensus हो गया, then the name would be sent to the President of Pakistan, and the President of Pakistan would be appointing a person who is being on whose name there is a consensus between the opposition and the government. ये होगा. और ये अगर बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ लेट मी नो. फिर आगे देखते हैं. अच्छा जी, ओथ के ऊपर कि वंस के पर्सन इज़ बीइंग अपॉइंटेड, अब उसका जो ये भी 22 अमेंडमेंट के अंदर आया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो 214 आर्टिकल है, डायरेक्टली डील्स विद दी
चीफ द डेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द ओथ के ऊपर, ओथ ऑफ ऑफिस 214। वो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जो कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो ओथ लेगा ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेगा। अंडर 240 आर्टिकल के तहत, 14 आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओथ लेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओथ लेगा। एंड दिस थिंग इज बीइंग रिटेन इन शेड्यूल 3 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके ऊपर बताया गया पहले क्या होता था कि हर गवर्नमेंट जो होती थी द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज जो थी वो इट वाज नॉट कंसिडर्ड अ परमानेंट डेजिग्नेशन कि वंस ए पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड देयर इज नो वन कि उसको वो रिप्लेस कर सके। और इस वजह से क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वो अपने मर्जी का बंदा लाने के लिए एक बंदा आता था उसको घर में भेज देती थी, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता था प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। तो इसमें बताया गया ये 18th अमेंडमेंट नहीं आया, इसमें 18th अमेंडमेंट में इसको इंश्योर किया गया, 22 अमेंडमेंट में इसको एंडोर्स किया गया और 20th अमेंडमेंट में भी क्या किया गया कि जो टर्म ऑफ कमिश्नर है वो फिक्स्ड 5 ईयर्स के लिए, यानी कि जो 4 मेंबर्स हैं ईच फ्रॉम एवरी प्रोविंस, 4 मेंबर्स और एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी जो टेन्योर है इट इज़ फिक्स्ड फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए फिक्स है। एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, वंस दे आर ऑन देयर सीट देन nobody can remove them, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज विल द प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव, जो जैसे पहले होता था ऐसा नहीं होता था। इसका मेथड बताया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ही काम ख़राब हो गया तो उसके ऊपर जैसे जज को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे जज को वो प्रोविजंस हैं उसी तरीके से, या इसकी इम्पीचमेंट करे लेजिस्लेचर, इसकी इम्पीचमेंट करे, या जनाब प्रेसिडेंट साहब रेफरेंस भेज दें, या जिस तरह जज को हटाया जाता कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए, इस तरीके से। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन को वंस द पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड नो बट देयर वुड बी नो पावर टू रिमूव हिम, ये याद रखिएगा। तो 215 आर्टिकल के तहत ऑफिस इज़ 5 ईयर और 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, यह मैं यहाँ पे एक प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना है। इसी के अंदर बताया गया था कि देयर वुड बी 4 मेंबर्स ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर and there would be 1 chief election commissioner and 4 members and 1 chief election commissioner, they would be appointed for 5 years। लेकिन जिस तरीके सेनेट में हाफ ऑफ द मेंबरशिप जो आपकी रिटायर हो जाती है एंड हाफ ऑफ द मेंबरशिप रिटेन रखी जाती है इन ऑर्डर टू हैव इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, इसी तरीके से ये प्रोविजन साबित रखी गई कि in order to have the institutional stability of the institution of election commission, first 2 members they would be retired after every, ये जो फर्स्ट मेंबर जो है फर्स्ट 2 there would be total 4 members and 2 members from those 4 members would retire after 2.5 years and the remaining 2 members they will complete their 5-year tenure, and this practice was made for one time, and after that in order to create institutional stability को maintain रखने के लिए जो फर्स्ट 2 members 2.5 years के बाद रिटायर हो गए, उनके बाद जो 2 नए मेंबर लिए गए उन्होंने, और जो पुराने 2 जो रह गए थे उन्होंने 5-5 साल का टेन्योर लिया, लेकिन फर्स्ट 2 थे उन्होंने 2.5 ईयर का टेन्योर पूरा किया। और इसका मेथड बड़ा ज़बरदस्त रखा गया आर्टिकल 215 क्लास 1 के तहत कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुड बी ड्राइंग दी लॉट्स, वो कुरानदाजी करेगा ऑफ द 4 मेंबर्स जिनके 2 नाम आ गए, दे वुड बी गेटिंग रिटायर आफ्टर 2.5 years, ये जो पहले 2 मेंबर्स थे, एंड द रिमेनिंग 2 मेंबर्स दे वर सपोज टू कंप्लीट देयर 5-year tenure, and later on whatever the 2 members they were being taken, they were also supposed to complete their tenure of 5 years and they were supposed to retire after 5 years। और बच्चों मेरी बात ये समझ आई है, ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों का कॉन्सेंट लूँ, ये जो मेथड बताया गया है इसके बाद क्या है, जो क्लास 2 है इसका क्लास 2, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंबर
and the chief election commissioner, they will not be removed from their office. उनको रिमूव किया नहीं किया जा सकता। और अगर रिमूव करना है तो सेम मेथड जो आर्टिकल 209 के अंदर बताया गया है कि जैसे जज को किया जाता है, या उसकी लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट करती है, या रेफरेंस दायर किया जाता है। अभी काजी फाइज ईसा के बारे में जो केस चल रहा है, एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को सीट से हटाने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा कि ये बंदा वही है, बड़ा सख्त है, ये बिकने वाला नहीं है, और जब हमारी गवर्नमेंट टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा तो उस वक्त ये जज होगा तो इसने वो रगड़ा देना है, जैसा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पीपल्स पार्टी को दिया था, और जनाब बाबा रहमत साकिब निसार ने दिया था जनाब नून लीग को। तो ये तो बड़ा सख्त बंदा, ये तो रगड़ा देगा और ये तो बिकने वाला नहीं है। तो उसके रेफरेंस दायर कर दिया, फेक न्यूज़ व्यूज़ वगैरह बना के, कुछ भी करके वगैरह वगैरह। खैर, तो जो रेफरेंस दायर हुआ है इसका बाकायदा, तो इस तरीके से भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 250 के क्लास 3 के ऊपर। अगर फ्रॉम दीज 5 people any of them is not willing to continue with his service, that person would be writing to the President of Pakistan and he would be writing his resignation to the President of Pakistan. वो प्राइम मिनिस्टर को खत नहीं लिखेगा कि आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग माई जॉब इन दिस इंस्टीट्यूशन। वो ही वुड बी डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वुड बी रिजाइनिंग। और ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्या था। और अगर वंस द वैकेंसी इज वेकेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द मेंबर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, then that vacancy under 215 class 4 के तहत that vacancy has to be filled within the 45 days. This is a constitutional limit कि ऐसा नहीं है कि उसको 6 महीने 9 महीने के लिए, जैसा कि 18th अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी यानी कि वैकेंसी वाज वैकेंट एंड इट वाज मेड अ पीरियड एंड अनएंडिंग प्रोसेस कि कंसेंसस नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को 45 डेज़ के अंदर अंदर पर्सन को अपॉइंट करना है, और अगर नहीं होता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपेक्स कोर्ट के पास इख्तियार है, वो इसको लेकर आए हैं, इसको करें। और इसके ऊपर में पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक पटिशन भी दायर हुई थी, और इसमें यह कहा गया था कि जैसा कि आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट ने नाअहली का सबूत दिया है, इसी तरीके से ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहदे के ऊपर भी गवर्नमेंट नाअहल है और हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक अ कंसेंसस विद अपोजिशन, क्योंकि हाई हैंडेडनेस रखती है ये, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, तो द होल इंस्टीट्यूशन वुड बी डिसफंक्शनल, इट विल बिकम डिसफंक्शन। और इसके लिए द अपेक्स कोर्ट मस्ट गिव अ डायरेक्शन टू दी गवर्नमेंट के उसके ऊपर 45 डेज़ के अंदर अंदर करें। और इस वजह से गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड on the instruction and the command of Supreme Court के they have to fulfill this designation within the 45 days। और उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में लास्ट पार्ट में पढ़ा था, आर्टिकल 216 के तहत इट इज़ रिटन दैट once you are chief election commissioner, once you are a member of the election commission, you cannot have any other office for profit in the service of Pakistan। office for profit का मतलब क्या है? सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मतलब you cannot have 2 portfolio at the same time, 2 पोर्टफोलियो नहीं हो सकते हैं, and you are getting remuneration from those 2 portfolios। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि पोर्टफोलियो नहीं रख सकते। और once you are retired from your seat, then before the expiration of 2 years after that person is not supposed to hold that office। यानी कि once you are retired after completion of 2 years, then you would be eligible to take another government portfolio, आप ले सकते हैं। लेकिन within 2 years of your retirement you cannot have another portfolio, आप नहीं ले सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन लगाई गई है अंडर आर्टिकल 216 के तहत, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कौन होगा अगर उनका कोई बंदा हो जाता है, कैसे होगा? या आर्टिकल 217 जो डायरेक्टली डील करता है
कि अगर उसका ऑफिस ऑफ कमिश्नर जो कि वेकेंट है, या दैट पर्सन इज absent, दैट पर्सन इज नॉट इन ए पोजीशन टू कंटिन्यू हिज सर्विस, या ही इज़ अब्रॉड ऑन बिकॉज ऑफ ऑन सम बिजनेस, ऑफिशियल बिजनेस वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, देन दी मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द members of commission would be acting as the chief election commissioner। और बच्चों मेरी बात समझ आई है? यहाँ पे इस चीज़ को सही किया गया है। पहले जैसा कि 18th अमेंडमेंट में डिक्लेयर किया गया था कि वंस दी सीट इज़ वेकेंट, सीट वेकेंट हो गई है और देर इज़ अ नो कंसेंसस बिन दी अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कंसेंसस नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अंडर द 18th अमेंडमेंट वाज हैविंग द अथॉरिटी टू सेंड हिज जज on ad hoc basis to take over the position of chief election commissioner and then perform the duties, constitutional duties। अब 22 अमेंडमेंट में ये डिक्लेयर किया गया, उसको रिजेक्ट करके ख़त्म करके ये कह दिया गया कि वंस दी सीट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज वेकेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, then the senior most member of the members of commission, they would be acting as the chief election commissioner, चीफ इलेक्शन कमीशन को वो लेंगे। और बच्चों मेरी बात समझ आई है कि ये 217 के तहत मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन दे वुड बी, और ये रिसेंटली हुआ भी है एक जगह के ऊपर कि जावेद इकबाल साहब जो हैं, आपके जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो बाहर गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी ऑफिशियल बिजनेस पे, तो सीनियर जो चीफ जो मोस्ट सीनियर मेंबर था वो फिर उन्होंने, ये 22 अमेंडमेंट के बाद हुआ है, 18th अमेंडमेंट वाला वो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंपोजिशन तो आपने देख ली कि अब जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से लेना है, वो किस तरीके से आएंगे, वो तो 4 सूबों से 4 मेंबर्स लिए जा रहे हैं, उसकी कंपोजिशन कैसे होंगी। आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टोटल 5 मेंबर्स हैं, और अगर एक भी मेंबर नहीं है तो इसका मतलब उस प्रोविंस के अंदर होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन हो जाएंगे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से मेंबर जो है, सिंध से एक मेंबर है, पंजाब से एक मेंबर है, अगर उसकी सीट खाली है तो जितनी कैजुअल सीट्स खाली होती हैं किसी डेथ की वजह से मेंबर पार्लियामेंट का लोअर असम्बली में या अपर हाउस में या लोअर हाउस में या प्रोविंशनल असम्बली में, तो इलेक्शंस नहीं हो पाते थे। और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इलेक्शन नहीं हो पाते थे। फिर क्या किया गया, उसके लिए उन्होंने उसकी भी प्रोविजंस बताई कि मेंबर्स कैसे हैं फॉर दी पर्पस ऑफ द इलेक्शन ऑफ बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट और प्रोविंशनल असम्बली। तो उसके लिए परमानेंट जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किस तरीके से कहें, द इलेक्शन कमिश्नर शैल कंसिस्ट ऑफ द कमिश्नर, जैसा कि आपको बताया, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें, एंड द 4 मेंबर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मेंबर के लिए क्या हो सकता है, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट या सीनियर सिविल सर्वेंट जो होगा। और इसकी एज रखी गई है 65 ईयर्स, उसकी एज रखी गई थी 68 ईयर्स के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 68। ये आर्टिकल 218 डील कर रहा है कि जो मेंबर्स हैं उनकी कंपोजिशन वो किस तरीके से अपॉइंट होंगे, और उसके लिए बताया क्या जा रहा है कि 4 मेंबर्स होंगे, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस, एक होगा, और वो कौन हो सकते हैं, अ जज ऑफ हाई कोर्ट, राइट, या सीनियर सिविल सर्वेंट या टेक्नोक्रेट, और जिसकी नॉट हैविंग द एज ऑफ जो मोर एज देन दी 65 ईयर्स, और ये होगा। और ये फिर ये प्रोविंशनल असम्बली के अंदर ये लगाएंगे। अच्छा, उसका जो ओथ, जो कमिश्नर का जो ओथ था वो लेता था, ये बताया गया है उसके आगे कि उसका जो ओथ लाता चीफ जस्टिस साहब लेते थे। और सिविल सर्वेंट का मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि सिविल सर्वेंट से मुराद क्या है, टेक्नोक्रेट से क्या मुराद है। ये हम लोगों ने सिविल सर्वेंट जो है कि 22 ग्रेड से रिटायर हुआ है, टेक्नोक्रेट वो है 20 साल का नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट है उस बंदे की, एंड 16 ईयर्स ऑफ एज जो एजुकेशन की डिग्री है। और ये जनाब, अच्छा उसके बाद खैर अब ड्यूटी ऑफ कमिश्नर क्या है, कमीशन इसकी ड्यूटीज़ बड़ी हैं। आप लोगों को पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंसिग्निया क्या है, फ्री फेयर इलेक्शंस करवाना है भाई पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं, कौन से हैं, इसके बारे में कोई कंसेंसस नहीं है। हमेशा यही कहा जाता है
कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर थे और अपोजिशन भी। और किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, अपोजिशन को पता होता है उसको कितनी सीटें मिलनी हैं और गवर्नमेंट को पता होता है उसको कितनी सीटें मिलनी हैं, इस तरह के अंदाज़ों के ऊपर और चल रहा होता है सारे मामला बंदर बांट वगैरह वगैरह। तो खैर मैं जो बताना चाहता हूँ, ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन क्या है। कमीशन आर्टिकल 219 के तहत इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, लोकल गवर्नमेंट्स, इलेक्टोरल रोल्स बनाना है, यानी कि रूल्स ऑफ बिजनेस बनाना है, किस तरीके के तहत इलेक्शंस होने हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द सेनेट और टू फिल द कैजुअल वैकेंसीज इन द हाउस ऑफ नेशनल असम्बली और द प्रोविंशियल असम्बली, या इफ कोई डिस्प्यूट आ गया है इलेक्शन कमीशन में, कोई डिस्प्यूट आ गया है उसके लिए अपॉइंटिंग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने हैं वगैरह वगैरह। ये इसकी ड्यूटीज़ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं। या पार्लियामेंट कोई ख़ास काम दे देती है कि भाई ये काम करना है इलेक्शन कमिश्नर ने, और जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं पूरे मुल्क के अंदर, नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के, लोकल गवर्नमेंट्स के वगैरह 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 वगैरह। ये सारी चीज़ें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरिम सेटअप के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहा होता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं वो रेंजर्स को बुला रहे होते हैं, फ़ौज को बुला रहे होते हैं, जुडिशरी को कॉल कर रहे होते हैं, जनाब पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आगे लगाया होता है। आर्टिकल 220 जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंशियल असम्बलीज, they are supposed to help to the commissioner and the election members of election commission in the discharge of their functions। तो ये आर्टिकल 220 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतनी अथॉरिटी है, वो रेंजर्स को बुला सकती है, वो फौज को बुलाती है, और पाकिस्तान और फौज और रेंजर्स के जितने हेड हैं दे आर सपोज टू follow the commands and the instructions coming directly from the chief election commissioner or the office of election commissioner। 220 के तहत कितनी आर्टिकल 2 इतना इम्पोर्टेंट है ये बताता, और उसमें ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने, और आप लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद ये फिर उसके बाद ये है कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने अपने इसको छोड़ें, इस प्रोविजन को। अब आते हैं दूसरी बात, चैप्टर 2 के ऊपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 222 इसका आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 2 इलेक्टोरल लॉज एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि ये क्या क्या है कि रोल एंड फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से इसने इलेक्शंस करना है। आर्टिकल 222 मजलिस शुरा क्या है जी, एलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन नेशनल असम्बली इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। उसके बाद डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं, फिर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस हैं, और उसके बाद हैं इंक्वायरिंग अबाउट द पहले तो मैटर्स ऑफ जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो ऑफेंसेस हैं इलेक्शन से रिलेटेड है उनके ऊपर ट्रिब्यूनल्स बना लें। ऑल मैटर नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज एंड ये इसने इंश्योर करना है, ये आर्टिकल 222 के तहत सारे काम इसने करने हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि ये जो इलेक्टोरल रूल्स एंड रूल्स ऑफ बिजनेस जो बनाने हैं आर्टिकल 223 के तहत, नो पर्सन at the same time could be a member of the upper house and the member of the lower house or the member of the national assembly or the member of the provincial assembly। अब इस चीज़ों के बारे में बताया गया, बड़े इंपॉर्टेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं, पढ़ने के काबिल हैं, सुनने के काबिल हैं, ज़रा देख लीजिएगा कि नो पर्सन शैल बी एट द सेम टाइम द मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, मेंबर ऑफ द हाउस एंड द प्रोविंशियल assembly and the assemblies of the 2 or more than 2 provinces or the house or a member provincial assembly in respect of more than 1 seat। यानी एक पर्सन इज नॉट अलाउड कि वो 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करो और दोनों भाई एक वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, मेंबर नेशनल असेंबली भी हो और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी हो, ये चीज़ें नहीं हो सकती आर्टिकल 223 के तहत। और अगर ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा है आपका शहबाज शरीफ साहब है जो नून लीग के 5 जगहों से इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा, 5 सीटें पता नहीं किस इलेक्शन में जीत गया था, तो उनको कहा गया है कि विद इन 30 डेज ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन जो है उसके अंदर उसने बताना है कि उसने कौन सी सीट रखनी है, और अगर वो नहीं रखता तो फिर प्रोविजंस बताई गई हैं कि कौन सी सीट उसकी रखी जाएगी। पहले तो वो बताता है कि कौन सी सीटें, 4 सीटें खाली करेगा, 1 सीट रखेगा, अगर 2 से जीता 1 सीट रखेगा, वो बताएगा विद इन द 30 डेज के अंदर उसने बताना है कि उसने कौन सी सीट रखनी है। और अगर वो नहीं बताता तो फिर
जिसमें उसकी जो नॉमिनेशंस जो लास्ट में सबमिट हुई हैं उसको लिया जाएगा, या जिस सीट से अगर एक सीट से वो पिछले इलेक्शन में भी जीता था वो उसको कंसिडर किया जाएगा। और बच्चों ये मेरी बात समझ आई है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझ आई है आपको? आगे क्या है जी, आर्टिकल जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की 2 to 3 के तहत है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस है। भाई तुम 2 सीटें नहीं रख सकते, एक कमरा और सारी छोड़ोगे, ये 30 डेज़ के अंदर रहता है। और टाइम और इलेक्शन जो है इसके ऊपर वो कैसे कैसे होगा। अब ये जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बताया गया है कि जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी, प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व होगी, तो कितने देर के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस के अंदर जो हैं आपका इंटरम सेटअप कैसे होगा। इंटरम सेटअप ये अब सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कस करें और सुनने के काबिल हैं। आर्टिकल 224 यानी 224 क्लास 1 के तहत जनरल इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली होना है within a period of 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire। यानी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस विदिन 60 डेज होने हैं जब उस यानी उस प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली की फ्रॉम दी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उसकी असम्बली की, ठीक है, विदिन 60 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। और जो रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन है हैज़ टू बी डिक्लेयर विदिन द 14 डेज, और 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपने बताना है। जनरल यानी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की डेट ऑफ एक्सपायरी के 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है जी इलेक्शन। अब आप लोगों ने देखा होगा नेशनल असम्बली की एक्सपायरी और प्रोविंशियल असम्बली की जो एक्सपायरीज हैं उसके ऊपर सारे मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि हम एक ही दिन क्या करेंगे, एक ही दिन हम अपनी असम्बलियों को डिज़ोल्व करेंगे और एक कंसेंसस किया जाता है, और ताकि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है वो इजी हो जाए। 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं और इस दौरान इंटरम सेटअप आ जाता है। और जब इलेक्शंस हो जाते हैं जनरल इलेक्शंस, तो 14 डेज़ के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस करना है हर सूरत हर कीमत पे। अब इसका एक जो 2 to 4 यानी 224 का क्लास 1 है, उसका क्लास 1 का ए भी है। तो ये किस तरीके से डिज़ोल्व होती है, आर्टिकल 58 के तहत नेशनल असम्बली एंड आर्टिकल 112 के तहत प्रोविंशियल असम्बली। प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली, गवर्नर प्रोविंशियल असम्बली को क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा। आर्टिकल 112 के तहत प्रोविंशियल असम्बली, आर्टिकल 58 के तहत विद कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली आपका प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करेगा। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर कि इंटरम सेटअप कैसे आएगा। प्रेसिडेंट साहब जो हैं आपके, वो अपॉइंट करेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। केयर टेकर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रेसिडेंट साहब हैं जो आपके, अच्छा याद रखिएगा, द डेजिग्नेशन ऑफ सेनेट, डेजिग्नेशन ऑफ योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, they are the symbolic designation for the constitutional stability in the country। प्रेसिडेंट साहब भी आप उसको, जो प्रेसिडेंट साहब को घर नहीं भेज सकते, उसका फिर इम्पीच करो या तो उसको इम्पीच करो, उसके बगैर नहीं। और ये भी कहा, और वो ओवरसी कर रहा होता पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस और इंटरम सेटअप का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाता। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता कैसे है, ये प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं आउटगोइंग नेशनल असम्बली के, वो जनाब क्या लगाते हैं जी, वो जनाब लगाते हैं दोनों कंसेंसस करते हैं कि कौन होगा केयर टेकर। और अगर इन दोनों के दरमियान यानी कि जो अपोजिशन लीडर है एंड द प्राइम मिनिस्टर है, इन दोनों के दरमियान कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, तो उसका भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इज़ द केस विद द गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके और अपोजिशन के साथ करके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाता है प्रोविंशियल लेवल पे। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाता है। और ये सारे अब, और अगर इन दोनों के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं होता तो फिर क्या होगा, उसका आगे जाके आर्टिकल्स में बताते हैं। मीनवाइल ये जो आर्टिकल 1B है 224 का, आर्टिकल 1B के जो मेंबर ऑफ कैबिनेट जो हैं, केयर टेकर कैबिनेट के जो हैं,
वो और द केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और इनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द इमीडिएट फॉलोइंग इलेक्शंस। यानी कि केयर टेकर सेटअप का कोई भी जो कैबिनेट हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और उनके जो इमीडिएट हैं, इमीडिएट को भी एक्सप्लेन किया गया है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर से मुराद क्या है? स्पाउस और चिल्ड्रन है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं इलेक्शन लड़ सकता, भाई लड़ सकता है, लेकिन बीवी और बच्चे इनके मिनिस्टर्स के, चीफ मिनिस्टर्स के, केयर टेकर और कैबिनेट के और प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते। और बच्चों, ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके बाद जो प्रोविज़न जो क्लास बी है, जो 2 है नेशनल असम्बली का और प्रोविंशियल असम्बली, वंस द प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, जनरल इलेक्शन जो हैं, और जनरल इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन टू द असम्बली वुड बी विद इन अ पीरियड ऑफ 19 डेज। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल में, यानी कि जनरल इलेक्शन जो हैं आप लोगों के, when the national assembly or the provincial assembly are dissolved, a general election to the assembly shall be held within the period of 90 days after the dissolution, and the result of the election would not be declared later than the 14 days। ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब इसमें आप लोगों को ये बात समझ आई है कि जनरल इलेक्शंस आप लोगों ने नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली का जो जनरल इलेक्शन है आर्टिकल 224(1) के तहत पीरियड ऑफ 60 डेज इमीडिएटली होना है, और अगर नहीं होता तो 90 डेज़ के अंदर अंदर हर सूरत हर कीमत के अंदर आप लोगों ने इनको कंडक्ट करना है और उसका रिजल्ट आपने 14 डेज़ के अंदर देना है। जो क्लास 3 है सेनेट की सीट्स को आपको पता है जो 50% एक्सपायर हो जाता है, वो भी इन लोगों ने करवाना है, और जो सीट अगर खाली होती है 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको आप लोगों ने उसको फिल करना है। और अगर और इसके अंदर जो 4 क्लास बताया गया है कि अगर जनाब कहते हैं अगर व्हेन एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन इन नेशनल प्रोविंशियल असेंबली अ जनरल सीट इन एनी असेंबली हैज़ बिकम वेकेंट नॉट लेटर देन 124 डेज बिफोर द टर्म। हाँ, ये अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त एक प्रैक्टिस हो रही थी कि जनरल इलेक्शन की तैयारियां थी पूरे मुल्क के अंदर, जनाब जलसे जुलूस हो रहे थे। मीनवाइल पुरानी जो द असम्बली विच इज़ सपोज टू गो, जिसमें जाना था, उसके भी अभी जनरल इलेक्शंस हो, लोग जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते थे तो बाई इलेक्शंस हो रहे होते थे जनाब, यानी जो सीट वेकेंट होती है उसके इलेक्शन। तो उसका बताया गया है कि अगर 120 डेज़ अगर एक्सपायरी को रहते हैं तब इलेक्शन हो सकता है, तब इलेक्शन हो सकता है। अगर इससे कम है तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे वो सीट फिल करने के लिए। ये जो प्रोविज़न 4 है आर्टिकल 224 का इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि अगर 120 डेज ऑलमोस्ट 4 महीने बनते हैं, अगर एक्सपायरी ऑफ द नेशनल असम्बली को रहते हैं तो फिर तो इलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे कम है तो फिर इलेक्शंस नहीं होने। और उसके बाद व्हेन अ सीट इन सेनेट हैज़ बीन वेकेंट एन इलेक्शन टू फुल द सीट शैल बी हेल्ड विद इन द 30 डेज, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। और अगर इसके अंदर कोई वीमेन की सीट खाली होती है और अगर नॉन मुस्लिम की सीट खाली होती है नेशनल असम्बली में, आप लोगों को पता है ये फिक्स सीटें होती हैं, प्रोविंशियल असम्बली की होता है। तो ये बताया गया है कि वीमेन की खसूसी सीट है और अगर जनाब नेशनल असम्बली की खसूसी सीट के ऊपर माइनॉरिटी की सीट खाली हो गई है, रिज़ाइन कर दिया, बंदा फोत हो गया, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इन खसूसी सीट को फिल करने के लिए एक जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी जो होती है उनकी एक प्रोविजन रखी होती है कि अगर ये बंदा जाएगा इसके बाद ये मेंबर होगा हमारा। ये आर्टिकल 6 जो सब क्लास जो सेक्शन 6 है ऑफ 224 का ये बता रहा है कि जिस पार्टी का माइनॉरिटी सीट खाली हुआ है या वीमेन सीट खाली हुआ है तो वो जनाब उस सीट को खाली करने के लिए जो उसको नंबर बताया जाता है, इसके बाद ये बंदा हमारा होगा, वो बंदा मेंबर बनता है। ये ऑलरेडी सबमिटेड होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी ने बताया होता है ये बंदा जाएगा तो ये होगा हमारा ये। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 224 का ए है रेजोल्यूशन बाय कमेटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब ये है इंटरम सेटअप के ऊपर कि जनाब अगर अपोजिशन लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी
जो चीफ मिनिस्टर है और अपोजिशन के दरमियान अगर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा कि केयर टेकर कौन होगा, तो फिर इस प्रोविज़न के अंदर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन जो आउटगोइंग असेंबली है, इफ़ दे आर नॉट हैविंग देयर कंसेंसस कि हु वुड बी दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो विद इन 3 days ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली के अंदर अगर ये कंसेंसस नहीं होता तो फिर क्या होगा, जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो 8 मेंबर्स ऑफ द आउटगोइंग असेंबली के या सेनेट के, ये दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन का बनाएगा, क्या बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा। कौन बनाएगा, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। और वो कंसेंसस, ये जो कमेटी बनाएगा, दैट दिस कमेटी विल ट्राई टू कम अप विद अ पर्सन ऑन विच ऑन होम द अपोजिशन एंड व्हाट यू कॉल के, ये जो आपके ये जो गवर्नमेंट है कि जो लोग हैं, दे आर हैविंग कंसेंसस। एंड इफ़ देयर इज़ अ नो कंसेंसस, अगर कंसेंसस नहीं होता, पहला क्या है, 2 to 4 के तहत गौर से सुनिएगा। पहला क्या प्रॉब्लम है, पहला ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ आउटगोइंग असेंबली एंड द प्राइम मिनिस्टर, दे वुड बी कमिंग अप विद द पर्सन जिसके ऊपर दे आर हैविंग देयर कंसेंसस। एंड इफ़ देयर इज़ अ नो कंसेंसस, द असेंबली डिसॉल्व होगी विद इन 3 days और कोई नाम नहीं आया, तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली विड बी मेकिंग द कमेटी बनाएगा, एंड दैट कमेटी वुड बी कंपोज ऑफ द मेंबर ऑफ द आउटगोइंग असेंबली, और इसके दरमियान इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्राम द अपोजिशन एंड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्राम द ट्रेजरी बेंचेस। और दिस कमेटी विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू कम अप विद द पर्सन और whom they are having their consensus। और if the consensus is not there, फिर भी अगर consensus नहीं होता, फिर क्या होगा, फिर जो आपका स्पीकर है, वो जो मेंबर्स हैं जो हैं, वो नाम भेज देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर कंसेंसस लाकर अपना बंदा अपॉइंट कर देगा, वो केयर टेकर। ये है इम्पोर्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये इसके ऊपर मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या ये बात समझ आई है कि नहीं। आई पर्सनली बिलीव कि अगर अपोजिशन लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर they remained unable to come up with the person on whom they are having their consensus, then ultimately the matter would be referred to the parliamentary committee, and the speaker would be making the parliamentary committee within the 3 days of the dissolution assembly, and then 6 members from the treasury benches and the 6 members from the opposition benches. And even if these 12 members they remained unable to come up with the person on whom they are having their consensus, then ultimately the nominations would be sent to the chief election commissioner, and the commissioner, after getting the nominations, would be making a decision within 2 days. So I personally believe कि ये अच्छी बात है और ये एक अच्छा प्रोविजन रखा गया है। अगर इतना डेडलॉक क्रिएट हो गया अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, then the chief election commissioner under the constitution of Pakistan is having the constitutional authority to appoint, and his decision would never be challenged, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोविजन ये लगाई गई है। और पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 के इलेक्शन के बाद 13 के इलेक्शन में हमने डेडलॉक्स देखे हैं, और जुडिशरी के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान वगैरह वगैरह, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि ये होना चाहिए था इस तरीके से। उसके बाद आर्टिकल 225 जो भी है, ये जो इलेक्शंस होता है, अगर इसके दरमियान प्रोविंशियल असम्बली का जो इलेक्शन हुआ और जो नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन हुआ, इसके दरमियान इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अगर होता है, तो उसकी एक इलेक्शन पटिशन बनाई जाएगी, इलेक्शन पटिशन दी जाएगी थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर यानी कि धांधली का रोना रोया जा रहा है, तो पार्लियामेंट जो हैं वो एक जो है ट्रिब्यूनल बनाएगी, और वो फिर पार्लियामेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहेगी कि ट्रिब्यूनल बनाया है हमने, और इसकी अब जिम्मेदारी आपकी है कि इसकी वो की जाए, इसकी स्क्रूटनी की जाए कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये लीगल हैं कि नहीं हैं। तो ये जो है, नो इलेक्शन टू अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पटिशन प्रेजेंटेड टू सच अ ट्रिब्यूनल और इन सच ए मैटर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगी होना है कि नहीं होना। और ये आपको पता है
मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर अपोजिशन को पता होता है कि उनको कितनी सीटें मिलनी हैं, अगर उन्होंने गवर्नमेंट में आना है कि नहीं आना, और गवर्नमेंट को पता हो रहा है उनको कितनी सीटें मिलनी हैं, और ये इनको पता होता है। और इसी वजह से नून लीग को पता था इन्होंने नहीं आना इलेक्शन में, गवर्नमेंट में नहीं आना, इनको नहीं आने दिया जा रहा, तो ट्रिब्यूनल बनाया। वो ट्रिब्यूनल कहाँ गया? कोई उसकी समाअत नहीं, धांधली, सब बंदों ने धांधली 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 की, कोई रिजल्ट नहीं आया, किधर गया? तो मैंने आप लोगों को ये पहले बताया कि मेरी गट फीलिंग है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, तो ये जनाब फिक्स्ड ही होता है, कोई जनरल शनफ फिर कुछ भी नहीं है। उसके बाद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पता क्या होता था, ये जो छंगा मंगा पॉलिटिक्स का चला, और उसके बाद जनाब आपको मरी और नथिया गली पॉलिटिक्स के ये जो स्लोगन्स आप लोगों ने बड़े सुने, छंगा मंगा सुने, और फिर पता नहीं क्या क्या, और मरी पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। उसमें क्या होता था कि पैसा चलता था और मेंबर खरीद लिए जाते थे, अपोजिशन के जो लोग थे वो अपना कैंडिडेट लेकर आते थे, और जो विनिंग पार्टी थी वो अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते थे। और होता क्या था कि वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता था पाकिस्तान में जिसको 12 वोट पड़े होते थे, या जिसके 12 सीटें होती थी, या जिसको 12, ये भी हुआ है। तो जनाब ये बताया गया है 225 के तहत कि विनिंग पार्टी का बंदा हार जाता और जनाब लूजिंग पार्टी का बंदा आलीनाल हो जाता। तो ये बताया गया इसमें सीक्रेट बैलेट 225 के तहत कि सीक्रेट बैलेट कैसे होगा 226 के तहत। ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी कॉल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सारे इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन छोड़कर, ये क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट होते हैं, इसमें सीक्रेट बैलेट को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा ये मैं हूँ, ये मेरा वोट है और मैं इसको डाल रहा हूँ। तो वो काउंटिंग में आता था, भाई इस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर को दिया, इस बंदे ने दूसरे कैंडिडेट को दिया, विनिंग पार्टी के कैंडिडेट को दिया या लूजिंग पार्टी को कैंडिडेट को दिया। पहले क्या होता था, विनिंग पार्टी जो होती थी वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेकर आती, उनका प्राइम मिनिस्टर हार जाता, कैंडिडेट हार जाता क्योंकि पैसा चलता था। और बाकी जो आप लोग जनरल इलेक्शंस देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सेनेट का जो इलेक्शन है सीक्रेट बैलेट है, और आपका जनरल इलेक्शन है आप जाते हैं बूथ में छुप के वोट कास्ट करते हैं, ये 226 के तहत है। तो बच्चों ये आज हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 8 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देखा। चैप्टर 1 जैसा कि हमने देखा वाज ऑल अबाउट द चीफ इलेक्शन कमीशन इन द कंपोजिशन, function, role and appointment of chief election commissioner and the members of election commission, and then the rule of business, and then the conduct of elections in Pakistan। ये सारे की सारी जो प्रोविजंस हैं ये चैप्टर 2 के तहत, इलेक्टोरल लॉज एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 8 हमने देखे। और ये सारी चीज़ें, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी हैं। एक दो चीज़ों के ऊपर शायद को मुझे लग रहा है फंबल है हमारा, इसको व्हेन वी पीपल वुड बी गोइंग थ्रू इट अगेन, उसमें हम चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कोई फंबल रह गया, प्लीज़ लेट मी नो ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। और अगर नहीं देन ऑल इज़ गुड दैट एंड्स गुड। हाँ जी बताइए प्लीज़, कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई। आलो क्लियर हो गया, ओके गुड हो गया। तो आज इसको हम ख़त्म करते हैं।